Good morning students. Today we are going to start with the grammar topic, that is preposition. As you all know that this is the sixth part of the speech and from 8 parts of speech, which are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, etc. This is the sixth part of speech which we are going to understand today. So let's start with the definition of preposition. What do you mean by preposition? A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and shows its relation with other words of the sentence. It means the word which is used before a noun or a pronoun and it also shows the relationship of that particular word with the other words of the sentence, कि उसका relation क्या है other words के साथ जो sentence में हम use कर रहे हैं. As you can see in the example, a cat is sitting under the table. A cat is sitting under the table. Here under is your preposition because it is showing the relationship between the cat and the table. कि cat में और table में क्या relationship है, वो ये जो word है under वो आपको बता रहा है. The relationship between the cat and the table. Next one, Sakshi is sitting in the classroom. Here in is your preposition. It is showing the relationship between Sakshi and the classroom. कि इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन क्या है. तो द वर्ड्स विच शोज द रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज प्रीपोजिशन. वी कैन ऑल्सो कॉल इट द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द पोजिशन. जो हमें पोजिशन के बारे में बताते हैं वो उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ द नाउन का रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. इसका रिलेशनशिप अदर वर्ड्स के सेंटेंस के साथ क्या है, दैट हु टेल्स अस प्रीपोजिशन. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट यहाँ पे आपकी नाउन है, टेबल आपका नाउन है. तो कैट का और टेबल का क्या रिलेशन है, ये आपको ये वर्ड बता रहा है अंडर, विच इज प्रीपोजिशन. अगर हम बोले द कैट इज सिटिंग द टेबल, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं. After using this word, after inserting this word in the sentence is complete and we are getting the relationship between the cat and the table. कि cat का इससे क्या relation है. Under is showing the relationship between the cat and the table. So preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and shows its relationship with other words of the sentence. This is the definition of pronoun. Now let's come to the types of preposition. Here comes the types of preposition. Preposition of time, preposition of place, preposition of direction. 3 types of preposition are there: place, direction and time. Now let's talk about time first. Preposition of time मतलब जब हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, इट इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. व्हेन मीन्स कब पर्टिकुलर चीज़ हो रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दैट पर्टिकुलर वर्ड्स डिनोट्स द टाइम. जब वो हमें बताता है कि पर्टिकुलर चीज़ पे हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ कब हो रही है, दैट इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सम ऑफ द वर्ड्स आर in, on, at, before, after. Okay, these are some of the words which denotes as the time, जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं. It links when one thing happen. ये क्या बताता है कि पर्टिकुलर चीज़ कब हो रही है. For example, my birthday falls in January. उस means my birthday falls when in the month of January. तो ये in word क्या है, आपको टाइम बता रहा है कि उसका बर्थडे कब आता है. Next one, my vacation ends on Monday. Here also it is describing you the time only, कि टाइम कब है, कब उसके वेकेशन एंड होंगे, मंडे को. तो ये मंडे क्या है आपका टाइम. ये ऑन वर्ड आपको टाइम डिनोट कर रहा है. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. वो क्या बता रहा है आपको, कोल्ड कब होता है, नाइट में. दिस एट वर्ड इज डिनोटिंग यू द टाइम. वो आपको टाइम पीरियड बता रहा है कि ठंड कब होती है.
at night. So this in, on, at, these three words are denoting you the time. वो आपको in the first sentence it is denoting you, it is denoting you the time, and it is telling then when his or her birthday falls, and when his vacation is going to end, and when it gets cold at night. So basically the preposition of time tells you one thing happen, कब particular चीज़ हो रही है. That preposition of the words which denotes you the time are known as preposition of time. वो ये बताते हैं कि particular चीज़ आपकी कब हो रही है. Now let's talk about second one, preposition of place. Place means where, means कहाँ, particular चीज़ कहाँ हो रही है. And some of the examples are, some of the words are under, above, in, on, at. Here you must be thinking that we have used in, on, at here also and again here, but the meanings are different. ये आपको time denote कर रहा है और ये आपको क्या denote कर रहा है, place. ये आपको बता रहा है कि particular चीज़ कब हुई है और ये आपको बता रहा है particular चीज़ कहाँ हुई है. So in both the things, in both the types, the meaning are different of these three words. Let me show you some examples of preposition of place. Where anything is, मतलब particular चीज़ कहाँ है. It denotes you where anything is, particular चीज़ कहाँ है. Example, the books are on the table. Books कहाँ है आपकी, टेबल के ऊपर. This is the preposition. ये आपको बता रहा है पर्टिकुलर चीज़ कहाँ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, द प्लेन इज जस्ट बिलो क्लाउड. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, क्लाउड, जस्ट बिलो क्लाउड. अगर हम सिर्फ क्लाउड बोलें, द प्लेन इज जस्ट क्लाउड, व्हाट डज इट मीन. हमें पर्टिकुलर चीज़ पता ही नहीं चल रही कि वो कहाँ है. आफ्टर इंसर्टिंग दिस वर्ड वी केम टू नो दैट द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड, मतलब प्लेन क्लाउड के जस्ट नीचे है. सो दीज टू वर्ड्स आर टेलिंग अस अबाउट द प्लेस, कि पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे है. वेयर द थिंग विथ वी आर टॉकिंग अबाउट, वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे है. यहाँ पे बुक्स कहाँ है आपकी, टेबल के ऊपर. यहाँ प्लेन का है आपका बिलो क्लाउड. सो ये दोनों वर्ड्स आपको प्लेस बता रहे हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट प्लेस क्या है. सो preposition of place tells you where anything is. Now let's come to third one, in which direction, मतलब किस direction में particular चीज़ हो रही है. And some of the words are to, into, of, from. ये कुछ words हैं जो हमें denote करते हैं preposition of direction, कि particular चीज़ आपकी कहाँ पे हो रही है. Let's now talk about preposition of direction. Preposition of direction tells you where to go or where to put something. कहाँ जाना है या फिर कहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ रखनी है. It gives you the direction basically. For example, we went to school last week. We went to London last week. Means here it is giving you the direction that where we went. हम कहाँ गए, London. He went up the hill. ये कहाँ गया, hill. So to and up are your preposition of direction. These two words are telling you the direction that where they both went. He went to hill and they went to London. ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन बता रहा है वो, कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ गए. So it is telling you the direction. Here up and to describe in which direction they went, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों. ये टू और अब आपको क्या बता रहा है कि वो दोनों लोग किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू prepositional phrase. What do you mean by prepositional phrase? For that you should know what do you mean by phrase, कि phrase क्या होता है. Phrase means a group of words. For example, if I have taken this, the balloon drifted, ये तीन मैंने words ले लिए, it is phrase. A group of words is known as phrase. And what do you mean by preposition? And what do you mean by prepositional phrase? A group of words containing preposition.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर प्रिपोजिशन आता है दैट इज नोन एज प्रिपोजिशनल फ्रेज. फ्रेज क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिर्फ सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर मैं 3 वर्ड्स ले लूँ इट विल बी फ्रेज, इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेज. ये 3 आपके क्या हो गए? फ्रेज. अगर इसमें प्रिपोजिशन आ रहा है आपका तो इट विल बी योर प्रिपोजिशनल फ्रेज. प्रिपोजिशनल फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रिपोजिशन, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर प्रिपोजिशन भी हो, दैट इज नोन एज प्रिपोजिशनल फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स. ड्रिफ्टेड मतलब क्या होता है? हवा के साथ बह जाना. द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स. हेयर अप इज योर प्रिपोजिशन एंड द स्टेयर्स इज योर फ्रेज. तो ये क्या हो गया आपका? प्रिपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन भी आ रहा है. प्रिपोजिशनल फ्रेज वह होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स यू विच कंटेन्स प्रिपोजिशन ऑल्सो. इन सेकेंड वन, द रैबिट हॉप्ड थ्रू द गार्डन. हॉप मतलब जंपिंग ऑन वन लेग. द रैबिट हॉप्ड थ्रू द गार्डन. हेयर थ्रू इज योर preposition and this is your phrase, so it has become prepositional phrase. ये through the garden is your prepositional phrase. The tiger crept slowly over the grass. crept मतलब धीरे धीरे चलना, means ताकि कोई नोटिस ना करे आपको. The tiger crept slowly over the grass. Here over is your preposition and this is your phrase. So these three group of words become prepositional phrase. Prepositional phrase are group of words containing preposition. In तीनों sentence में here the preposition is coming and this is your phrase. The stairs, the garden, the grass. So it became prepositional phrase. Up the stairs, through the garden, over the grass. So these 3 are your prepositional phrase. Now let's recall what we have learned. Preposition. A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun and show its relation with other words of the sentence. जो नाउन का रिलेशन बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन बताता है अदर वर्ड्स के साथ जो कि सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रिपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. यहाँ पे अंडर वर्ड इज योर प्रिपोजिशन विच इज टेलिंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन द कैट एंड द टेबल. सो बेसिकली ये आपको रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का इन द with the words which are used in the sentence, and these are basically also known as positional words जो आपको position बताते हैं. Next one, we have learned types of preposition. Preposition of time, preposition of place and preposition of direction. Preposition of time, in, on, at, before, after. ये आपको क्या बताता है? टाइम. टाइम मीन्स कब वो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. मीन्स उसका बर्थडे कब आता है, किस टाइम पे आता है? जनवरी में. माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. कब आता है, कब होगा उसका वेकेशन एंड, और एट विच टाइम, ऑन विच टाइम? मंडे. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. कब होती है ठंड? एट नाइट. तो ये दीज 3 आर टेलिंग यू दी टाइम. जनवरी, मंडे एंड नाइट, ये तीनों वर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं? टाइम. नाउ नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अंडर, अबव, इन. अंडर, अबव, इन, ऑन, एट. ये आपको क्या बताते हैं? दैट वेयर एनीथिंग इज, पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पे है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. सो ऑन हेयर इज योर प्रिपोजिशन विच इज टेलिंग यू द प्लेस, कि हम जिस बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है. द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड. पर्टिकुलर क्लाउड कहाँ पे है? बिलो क्लाउड. क्लाउड के पर्टिकुलर प्लेन कहाँ पे है? क्लाउड के जस्ट नीचे. सो हेयर below is your preposition which is telling you the place. Now comes the direction. Preposition of direction. To, into, off, from. What do you mean by direction? Where to go and where to put something. कहाँ जाना है और कहाँ पर्टिकुलर चीज रखनी है. डायरेक्शन बताना, रास्ता बताना. For example, we went to London last week. Where they went? To London. He went up the hill. वो कहाँ गया? हिल पे. So these to and up are basically telling you the direction कि वो पर्टिकुलर लोग किस डायरेक्शन में गए, कहाँ गए वो. So these are known as preposition of direction. So these 3 are your preposition of direction: time, place and direction. Now next is prepositional phrase. Prepositional phrase क्या होते हैं? What do you mean by phrase? A group of words.
कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रीपोजिशन. उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर प्रीपोजिशन आ रहा है दैट देन इट विल बिकम प्रीपोजिशनल फ्रेज. द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स. हियर अप इज योर प्रीपोजिशन, द स्टेयर्स इज योर phrase, then it became prepositional phrase. The rabbit hopped during the garden. Through is your preposition, and these three words are prepositional phrase. The tiger crept slowly over the grass. Over is your preposition over here, and over the grass is your prepositional phrase. Now let us solve some of the exercises related to this topic. Add the preposition in the following sentence. You have to add the preposition over here. We live dash India. Here preposition is in. It is telling you the place कि हम कहाँ रहते हैं. In India. At India नहीं हो सकता, on India नहीं हो सकता. It will be in India. Now next one. Would you like to go to the cinema tonight? वो क्या बता रहा है आपको? Particular place कि आप वहाँ जाना पसंद करोगे. टू दी सिनेमा. इन दी सिनेमा नहीं, ऑन दी सिनेमा नहीं आएगा, ना ही कोई और वर्ड यूज होगा. आंसर विल बी टू दी सिनेमा. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. मीन्स ब्रिज के पास क्या है? रिवर है. सॉरी, रिवर के पास क्या है? ब्रिज है एक. शी इज अराइविंग ऑन 13th February. इट इज गिविंग द टाइम. वो आपको टाइम बता रहा है कि वो कब आएगी. ऑन 30th February at 8 o'clock in the morning. किस टाइम पे आएगी? एट 8 o'clock. तो आंसर विल बी ऑन एंड एट. डोंट फॉरगेट टू पे फॉर द न्यूज़पेपर. ऑन द न्यूज़पेपर तो आएगा नहीं. हमें किसी चीज़ के लिए पे करना है तो व्हाट वी विल यूज? फॉर. किस चीज़ के लिए हम पे कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर. नेक्स्ट इज अ डार्क क्लाउड वॉज अबव द हाउस. इट इज गिविंग यू द अगेन द प्लेस कि वो पर्टिकुलर डार्क क्लाउड कहाँ पे है? जस्ट हाउस के ऊपर. अबव मीन्स ऊपर, ऊपर उस हाउस के जस्ट ऊपर है. देन अबव इज अ प्रीपोजिशन. शी सिट बिसाइड अनुष्का. इट इज टेलिंग यू द डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में बैठी है. शी सिटिंग बिसाइड अनुष्का, अनुष्का के बगल में. नेक्स्ट वन. द टीचर सेड नो टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास. ड्यूरिंग वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी नॉन परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो और जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं दैट पर्टिकुलर थिंग इज इन मोशन. वो रुकी नहीं होती, वो कंटिन्यूशन में रहती है. देयर वी यूज द वर्ड ड्यूरिंग. आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग एंड टी इन द आफ्टरनून. इट इज डिनोटिंग यू द टाइम. देन इन विल कम. इन इज अ प्रीपोजिशन. द कार वेंट थ्रू द टनल. द कार वेंट थ्रू द टनल. इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन कि वो कहाँ जा रही है? टनल के अंदर से जा रही है. थ्रू इज योर प्रीपोजिशन. इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन. और ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है? आपकी नॉन परफेक्ट टेंस है. मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज़ हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मोशन में है, वो मोशनलेस नहीं है. कार अभी भी चल रही है, रुकी नहीं है. द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग. इट इज गिविंग यू द प्लेस. इट इज टेलिंग यू द प्लेस कि प्लेन कहाँ फ्लू हुआ? ओवर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से. द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द स्टोर. इट इज गिविंग यू द अगेन इट इज डिनोटिंग द प्लेस कि आपकी कार कहाँ पार्क्ड है? बिहाइंड द स्टोर. बिहाइंड इज योर प्रीपोजिशन. शी पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो. बाय मीन्स बाय हम तब यूज करते हैं व्हेन द वर्क इज डन बाय समबडी एल्स. कोई एजेंट हो, मतलब हम अपना काम खुद नहीं कर रहे, किसी और से हम अपना काम करा रहे हैं. देयर वी यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड बाय. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे. हियर इट इज डिनोटिंग यू दी टाइम. वो आपको टाइम बता रहा है कि वो कब से एब्सेंट है. सिंस मंडे मतलब मंडे से वो एब्सेंट है. सिंस हम ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं और फॉर हम कम टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं. डोरथी कलर्स आउटसाइड द लाइन. इट इज़ गिविंग यू द डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में आउटलाइन करती है? आउटसाइड द लाइन्स. किस डायरेक्शन वो करती है? लाइन से बाहर. सो इट इज़ गिविंग यू द इट इज़ डिनोटिंग द डायरेक्शन. सो हियर आउटसाइड इज द प्रीपोजिशन. I hope you understood the topic preposition. Now I would like to tell you that you have to solve some of the sentences related to this topic. You will get the sentences in some of your solve some of the exercises of this topic. You may get the exercises in your grammar book or from the net. So at the end I just want to say this ki I hope you understood the chapter and stay home, stay safe. Have a very nice day.